Hello, everyone. I welcome you all to Everything About Sociology. My name is Yashika Hargunani, your sociology educator for the NTA UGC NET category and other sociology competitive examinations. कैसे हैं आप सब? So, as you all know, I have begun this Socio Booster series for all of you, where I am trying to cover all the core concepts from the syllabus of sociology when it comes to NTA UGC NET. यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सो टुडेज कॉन्सेप्ट फॉर द सोशियो बूस्टर प्रो सीरीज इज व्हाट आर सोशल फैक्ट्स बिफोर आई बिगिन दिस सेशन मेक श्योर दैट आपके पास एक नोटबुक है आप नोटबुक लेके बैठे हो डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं है और आप फुल फोकस के साथ सेशन अटेंड कर रहे हो और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट सोशोलॉजी प्रेपरेशन फ्रॉम बेसिक्स टू जेआरएफ लेवल सो बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास में हम डाइव इन करते हैं नाउ व्हेन आई स्टार्ट विद दिस क्लास फॉर व्हाट आर सोशल फैक्ट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके सामने मैं रखती हूँ आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो या नहीं रखते हो ये एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो ठीक है और अगर मैं बोलूं कि ये आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है बल्कि सोसाइटी का एक प्रेशर है साउंड्स वेरी वियर्ड ना आई मीन ऑब्वियसली हम जब फोन उठाते हैं दैट इज ऑब्वियसली आवर ओन चॉइस बट सोशल फैक्ट समझते वक्त आपको ये समझना है दैट आपका सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड that this is what exactly Imal Durkheim is trying to explain that social facts are external in nature. This is what exactly we call as social facts that every institution is external to us and somewhere we are imbibed to follow whatever the society throws at us. So आज के सेशन में आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलेगी on what are social facts. So without wasting any time, let us try to understand social facts. Before that, a little bit about me to students who have joined my session for the first time. I am a PhD research scholar in sociology at HSNC University, Mumbai. I have been an academy educator and taught for the NTA UGC NET Sociology for 2 years. I have 4+ years of teaching experience for sociology competitive examinations. I have taught in various schools and colleges too. I have given and I have started with PhD guidance and mentorship program for students now. Overall, I have 5 years of experience when it comes to competitive examinations for sociology. If you want the notes for these classes, make sure you join me on my Telegram channel for all free class updates and PDFs. The name of the channel is Everything About Sociology. You will get this, the link of this channel as well on my description box. We have already begun with the paid course on sociological theory. You get 50 plus live or recorded classes, English plus Hindi notes, doubt clearing sessions, and updated concepts. You can buy this course using my code YASHICASH. The original price of the course is 599. You will get it at 499 if you use the code. So let us begin with today's class. Now, before we begin with what are social facts, I hope you all by now know that social facts का concept जो है वो इमाइल डर्कहाइम ने दिया है. Yes, this is something I hope is clear with you. So अब हम आते हैं स्लाइड पर और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है when we talk about examinations. Okay? यहाँ हम समझेंगे कि इमाइल डर्कहाइम का पूरा कंट्रीब्यूशन क्या था specific to social facts और specific to research methodology. ओके सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं डर्कहाइम ने 1895 में एक बुक लिखी थी स्टूडेंट्स सो अभी हम बुक से शुरू करते हैं बिकॉज बुक्स जो होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं राइट और इस बुक का नाम क्या था स्टूडेंट्स द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट ये बुक आई थी 1895 में ऑलराइट और इसी बुक में उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया था दैट व्हाट इज सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिम सोशोलॉजी को कैसे स्टडी करना चाहिए एक मेथड कौन सा होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट इसी बुक में वो डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स सो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट सोशल फैक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है
वो कौन सी बुक में डिस्कस किया गया था? तो सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था इसी पर्टिकुलर बुक में, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड इन 1895। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप सबको देखनी है, यहाँ पे आपको और एक जर्नल जैसी एक बुक का फोटो दिख रहा होगा, राइट? सो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ला इन सोशोलॉजिक, जो कि 1896 और 97 के बीच में आई थी स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट सोशोलॉजिकल जर्नल किसने स्टार्ट किया था? हमारा आंसर होगा इमाइल डर्कहाइम। सो ही वाज द फर्स्ट, व्हाट वी से, फर्स्ट social thinker who started a journal, and he also got very famous because of this. And particularly ये जो जर्नल है ये सिर्फ फ्रांस में फेमस नहीं है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये जो जर्नल है सबसे पहली जर्नल मानी जाती है। Next very important concept that you need to remember is the concept of sui generis. उन्होंने जब बात की थी about sociology as a discipline और society students, वो इस concept के बारे में भी बात करते हैं sui generis। अब ये बहुत ही एक important term माना जाता है। डर्कहाइम सोसाइटी को बोलते हैं that कहीं ना कहीं society is known as sui generis। इसका मतलब क्या होता है? सोसाइटी अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक है, ये इंडिविजुअल्स के सम ऑफ पार्ट नहीं है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ही नेवर फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर, हिज फोकस वाज मोर ऑन सोसाइटी। सो वो ये कहते हैं दैट सिर्फ इंडिविजुअल से सोसाइटी नहीं बनती है, सोसाइटी अपने आप में ही यूनिक है और एग्जिस्ट करती है बिफोर द इंडिविजुअल्स। ओके गाइस, सो सिंपल वर्ड्स में इसको हम कह सकते हैं दैट सोसाइटी की अपनी अलग आइडेंटिटी है, एक अपना ही पावर स्ट्रक्चर है, और इंडिविजुअल से सोसाइटी नहीं बल्कि सोसाइटी से इंडिविजुअल्स का आना देखा जा सकता है। नाउ सोशल फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, ये एक कोर कॉन्सेप्ट है जो कि इस बुक में डिस्कस किया गया था, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। सो अब आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर कि सोशल फैक्ट्स होते क्या हैं। सो डर्कहाइम के हिसाब से सोशल फैक्ट्स आर नथिंग बट वेज ऑफ थिंकिंग। ओके, सोशल फैक्ट्स हमारा जो तरीका होता है सोचने का वही सोशल फैक्ट्स होता है। ओके, हम कैसा फील कर रहे हैं, द वेज ऑफ फीलिंग, द वेज ऑफ एक्टिंग, जो इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है, इट इज समथिंग एक्सटर्नल फ्रॉम द इंडिविजुअल, और उस पर प्रेशर कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसे सिंपल बना देती हूँ आप सबके लिए मैं, जो चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है चाहे आपका मन हो या ना हो, बट आपको फॉलो करनी पड़ रही है, राइट, वही सोशल फैक्ट्स होते हैं। Now, what are the features of social facts? I've mentioned here four features. You can remember them as CEES, okay? Coercive, external, enduring, social. So, social facts जो होते हैं ये चार features बहुत important हो जाते हैं। अब इनकी चार की characteristics को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Coercive का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कहीं ना कहीं ये social facts जो है force या pressure maintain करने की कोशिश करता है। एक्सटर्नल होना मतलब ये इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है। एंड्योरिंग मतलब टाइम के साथ कहीं ना कहीं हमें ये जनरेशन टू जनरेशन देखने मिलता है। एंड सोशल का मतलब होता है कि ये इंडिविजुअल नहीं होता है, ये रादर कलेक्टिव नेचर दिखाता है। सो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू गेट टू सी हियर इज सोशल करंट्स। ओके गाइस, ये भी इसी बुक में उन्होंने डिस्कस किया था। यस, अब यहाँ एक और टर्म दिया गया है जो है सोशल करंट्स। ये एक टेम्पररी फॉर्म होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ इमोशंस दिखाता है। जैसे कि क्राउड का इमोशन कैसा है, क्या वो एक्साइटेड है, क्या वो सैड है, एक्साइटमेंट है, पैनिक है, कैसे टाइप का इमोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्रिकेट मैच में जाते हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच देखने, तो क्राउड का एक्साइटमेंट ही आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं इंडिया जीत रही है या इंडिया हार रही है। ये परमानेंट नहीं होता है, समवेयर दिस इज वेरी मच टेम्पररी इन नेचर। जैसे जैसे मैच बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स द विनिंग पार्ट, एक्साइटमेंट देखने मिलेगा, मैच खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सोशल करंट्स इज। ओके, आई ऑलवेज गिव अ गुड एग्जांपल फॉर सोशल करंट्स कल हो ना हो की मूवी से, कि कैसे मूवी के दौरान शुरू के टाइम आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा फनी है मूवी, बट धीरे धीरे मूवी जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है। Okay, now what are the types of social facts? He has also given two types of social facts, that is
मटीरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक है। सोशल फैक्ट्स की ये जो दो टाइप्स हैं, इससे आपको शब्द से ही समझ में आना चाहिए। मटीरियल का मतलब होता है थिंग्स विच यू कैन काउंट ऑब्वियसली, लाइक यू नो द लॉज, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स। नॉन मटीरियल इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, लाइक योर वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ सिस्टम। सो एग्जाम में ये क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है. So by now I have discussed with you. Quickly, let's revise these terms. Number one, who has given the concept of social facts? It is Emile Durkheim. He also talks about sui generis, saying that society is unique. He has given four characteristics of social facts: coercive, external, enduring, social. Types of social facts are two types: material and non material. So you are supposed to remember this. Let us move ahead to the next part. I have given some more details on social facts here. Let us read and try to understand. Okay, guys? In sociology, social facts are the values, cultural norms, and social structures which transcend the individual and can exercise a social constraint. Sociology में social facts क्या होते हैं? The ways we think, हमारे जो values हैं, हम कौन से type के norms follow कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली दैट, कहीं ना कहीं हमें देखने मिलता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसे कंस्ट्रेंट के साथ फॉलो करते हैं. इसका मतलब क्या होता है? सोशल फैक्ट्स आर वैल्यूज, नॉर्म्स और सोशल स्ट्रक्चर्स. इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि सोसाइटी के जो हमारे रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, ये सब सोशल फैक्ट्स होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिविजुअल से कहीं ना कहीं बहुत ऊपर माने जाते हैं. इट इज नॉट समथिंग विच इज इंटरनल बट एक्सटर्नल इन नेचर. सो आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये प्री एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, और आपको इन्हें फॉलो करना पड़ता है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे. यहाँ पे एक और वर्ड आपके सामने आ रहा है, दैट इज सोशल कंस्ट्रेंट. इफ यू ऑल कैन सी, राइट गाइस? सोशल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं ये सोशल फैक्ट्स कहीं ना कहीं हमें प्रेशर मेंटेन करते हैं. ओके, इट काइंड ऑफ मेंटेन्स अ प्रेशर. सो सोसाइटी के कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स. सो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप एक सर्टेन वे में बिहेव करो. तो अगर आप उस तरीके से बिहेव नहीं करोगे तो आपको रिटर्न में कुछ टाइप के जजमेंट्स भी मिलेंगे. मान लो अगर एक टेम्पल है, ओके, टेम्पल के आपको बाहर उतारने पड़ते हैं फुटवेयर. यस, मान लो आप टेम्पल में फुटवेयर के साथ चले जाते हो. Obviously, society will judge you for this, and that is why you follow these rules, and that is what exactly coercion means. Hence, social facts are always decided by the institution. Okay, for Durkheim, sociology is nothing but the study of social facts, and social facts must be considered as things. So, Durkheim obviously is a thinker जो कि काफी ज्यादा scientific हैं, positivism से भी काफी ज्यादा inspired थे. तो वो हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना पसंद करते हैं. हेंस ही सेज दैट ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी सोशल फैक्ट्स हैं, वो हमें हमें उन्हें वी हैव टू ट्रीट देम एज थिंग्स. ओके, व्हाट डज दिस मीन स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है? सोशल फैक्ट्स को हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, पर्सनल ओपिनियन से हम इसे फॉर्म नहीं करेंगे. साइंटिफिक वे में इसे एनालाइज करने के लिए वी हैव टू ट्रीट देम वेरी मच ऑब्जेक्टिवली. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. चाहे वो वैल्यूज हो, नॉर्म्स हो जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, बट स्टिल यू आर सपोज टू ट्रीट देम विदाउट एनी बायस. The task of the sociologist is to search for correlations between social facts to reveal laws of social structure. Now, he was someone who also used concomitant variation. What does this mean? कहीं ना कहीं वो ट्रेंड्स देखने की कोशिश कर रहे थे सुसाइड में भी, राइट? सुसाइड को भी उन्होंने सोशल फैक्ट ही बुलाया था. यस, सो he says that we need to find out the trends between different kind of social facts and the laws of the institution. Okay, now what does this mean students? Sociologist का काम क्या है? सोशल फैक्ट्स के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेंड्स ढूंढना, रिलेशंस ढूंढना. जैसे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, सो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इनइक्वालिटी का रिलेशन क्या है, रिलीजन और सुसाइड का क्या रिलेशन है. सो ऐसे करके आपको ट्रेंड्स ढूंढने हैं. इसी से हम सोसाइटी के लॉज कहीं ना कहीं समझ पाते हैं. ओके, नेक्स्ट,
Having discovered these, the sociologist can then determine whether a given society is healthy or pathological and prescribe appropriate remedies. वो कहते हैं कि अगर सोशोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा दैट कि सोसाइटी में कौन से टाइप के सोशल फैक्ट्स हैं, ट्रेंड के हिसाब से वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है. दैट इज व्हाट ही कॉल्स एज नॉर्मल सोशल फैक्ट्स एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स. सो सोशोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि सोसाइटी हेल्दी है या पैथोलॉजिकल है. हेल्दी का मतलब सोसाइटी क्या नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, पैथोलॉजिकल का मतलब है कि सोसाइटी में एग्जेसिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम या ब्रेकडाउन आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज समवन हु ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम. ओके, जब वो क्राइम की बात करते हैं, he says that somewhat a little bit of crime is normal. क्योंकि वो सोसाइटी में अगर थोड़ा बहुत क्राइम मेंटेन होगा तो हमें कोहेजन देखने मिलता है सोसाइटी में. बट अगर वो क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है या एग्जेसिव हो जाता है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाता है. सो डर्कहाइम ने इसमें भी कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी दी थी. नेक्स्ट, विद इन सोशल फैक्ट्स डर्कहाइम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स. So I have talked about this before as well, material and non-material social facts. I hope this is clear with you guys. A few more details on the meaning of social facts to make it more clear for you guys. Okay guys? So अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये meaning क्या होता है और in depth तरीके से. Durkheim introduced this term social fact अपने phenomenal काम में. I have discussed this with you guys, the rules of sociological method. Okay? So ये 1895 में बुक आई थी जहां पे वो इस सोशल फैक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. सो ये बुक और कॉन्सेप्ट दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं. एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है लाइक आई टोल्ड यू कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट वाज गिवन इन विच बुक. ओके, सो यू नीड टू नो द नेम ऑफ द बुक एज वेल. अब यहाँ पे डेफिनेशन है, ही डिफाइन सोशल फैक्ट एज द वेज ऑफ एक्टिंग थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड एंडोड विद पावर ऑफ कोअर्जन बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल हिम. नाउ यहाँ पे सब कुछ है, सोशल फैक्ट क्या है और इसके फीचर्स भी डिस्कस किए गए हैं. सो ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे. सोशल फैक्ट्स आर नथिंग बट वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग. मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं रैंडम नहीं होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है सोसाइटी से. जैसे मैंने आप सबको कहा कि फोन यूज जो है, आप सुबह सुबह उठ के फोन उठा रहे हो, कहीं ना कहीं ये पीयर प्रेशर से भी हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर से भी हो सकता है. इट इज नॉट एन इंडिविजुअल चॉइस. ओके, सो अब और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने दिख रहे होंगे दैट इट इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल. लाइक आई सेड, इट इज नॉट इंटरनल, इट इज एक्सटर्नल. ये चीजें आपके बाहर एग्जिस्ट करती है. आप पैदा होने से पहले ही नहीं जानते हो ना कि लैंग्वेज क्या होता है, नॉर्म्स क्या होते हैं, रिलीजन क्या होता है, कस्टम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं. इट इज थ्रू सोशलाइजेशन यू कम टू नो दीज थिंग्स, राइट? सो आपने क्रिएट नहीं किया है इन्हें, पर आप फिर भी इसे फॉलो कर रहे हो कहीं ना कहीं. You have not person, it's not your personal choice, it has been told to you that it is in a certain way and you're following it. कोअर्जन की जैसी मैं बात करूं, कोअर्जन शब्द मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया, एक प्रेशर फॉर्म करता है ये कि आपको ये करना ही है चाहे आपको पसंद हो या ना हो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक, हम लास्ट क्लास में भी हमने ट्रैफिक का एग्जाम्पल लिया था, राइट? सो अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं फाइन लगेगा. ठीक है, इट इज नॉट योर पर्सनल चॉइस, राइट, कि आप आपको वहां रुकना है रोड पे, रेड लाइट हो जाएगा और आपको रुकना है रोड पे. इट्स नॉट योर पर्सनल चॉइस, इट इज द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल that you are supposed to follow, otherwise you will be given a fine. So it is external to you. Yes. Next example you can take on marriage as an institution. Okay, अगर शादी में कुछ रिचुअल्स आप नहीं फॉलो करते हो तो लोग आपको जज करेंगे, बिकॉज अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, people will start asking you that why are you not following these rules, and उस प्रेशर में भी हम, उस coercion में भी हम फॉलो करते हैं रूल्स. So these are social facts. I hope this is clear with you guys. Another example very nice जो मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को हमेशा से देती हूँ, on school uniform. Yes, क्या हम सबको पहले से ही पता था कि हमें स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना है? हमारा मन हो या ना हो, हमें वो एक ही सिमिलर यूनिफॉर्म रोज पहनना पड़ता था फ्रॉम
our childhood till we finished our 10th standard, right? So you have to wear your uniform. It is external in nature. It is something decided by the school institution, right? And it is coercive. That means अगर आप नहीं पहन के जाओगे यूनिफॉर्म तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. यस, सो इसी तरह चाहे लैंग्वेज हो, मैरिज हो, लॉ हो, रिलीजन हो, सब कहीं ना कहीं सोशल फैक्ट्स ही कहलाते हैं. Next point, to Durkheim, society is a reality. That is, it is sui generis. Society comes into being with the association of individual. What does this mean? Durkheim कहते हैं that society हमारी sui generis है. मैंने ये पहले भी डिस्कस किया आपके साथ. That society अपनी जो होती है वो कहीं ना कहीं यूनिक होती है. Sui generis का मतलब क्या है? Society हमारी यूनिक है. Okay? Very important. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग एक जगह खड़े हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स ही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन में हम उन्हें डाल दें, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल में डाल दें वो 100 बच्चों को, राइट? सो कहीं ना कहीं दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल. यस, सो इट इज वेरी यूनिक इन नेचर. दिस इज समथिंग वेरी बिगर देन द इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल चॉइस पे नहीं चलती है सोसाइटी. Hence, society represents a specific reality which has its own characteristics. Okay? What does this mean? सोसाइटी की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपने रूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना पावर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और यही रियलिटी है. यस, कहीं ना कहीं सोसाइटी बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे काम नहीं करती है. सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूनिक है. दिस यूनिक रियलिटी ऑफ सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रियलिटी स्टडीड बाय द फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस. फिजिक्स बायोलॉजी जैसा नहीं होता हमारा सोशोलॉजी, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट और यूनिक है. सो आई होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइज. See, I've put these two images for you guys to explain you what is normal and pathological by Emile Durkheim. Okay, let us quickly look at the differentiation. Okay, normal and pathological क्या होता है? सबसे पहले तो you have to understand this. ठीक है? Widespread and typical in society. Normal social facts जो हमारे होते हैं, these are something जो हमें सोसाइटी में हमेशा देखने मिलते हैं. कॉमन वैल्यूज दिखाते हैं ग्रुप्स के, और कहीं ना कहीं हमें बताता है कि इट इज पॉजिटिव इन नेचर, इट हेल्प्स द सोसाइटी टू फंक्शन इन अ नॉर्मल फॉर्मेट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं कॉमन है, वाइड स्प्रेड और एक्सेप्टेड है. ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करता है, सोसाइटी को कहीं ना कहीं स्टेबल बनाता है, राइट? टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्राइम लाइक इमाइल डर्कहाइम टॉक्स अबाउट, राइट? यस, ही सेज दैट क्राइम इज नॉर्मल. वो कहते हैं कि थोड़ा क्राइम होना नॉर्मल होता है. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है सोसाइटी का, और सोसाइटी को फंक्शन करने में भी हेल्प करता है, अकॉर्डिंग टू हिम. सो लिमिटेड क्राइम इज समवेयर नॉर्मल फॉर हिम. बट पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? ही सेज दैट इट इज अबनॉर्मल इन नेचर. कहीं ना कहीं जब इंडिविजुअल एग्रेसिव क्राइम कर रहा है, सोसाइटी से डिविएंट हो रहा है, राइट? सो जो अबनॉर्मल है, डिविएंट है, वही हमारा पैथोलॉजिकल हो जाता है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है. ओके, पैथोलॉजी तो आप समझते ही हो, ठीक है? यस, सो बहुत ज्यादा क्राइम हो जाना, रायट्स हो जाना, केओस हो जाना कैन बी गुड एग्जांपल्स ऑफ बीइंग पैथोलॉजिकल. ओके, इट समवेयर threatens the social order of society. Okay, I hope this is clear with you guys. Next, types of social facts. Social facts का यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने मेंशन किया है. डोंट वरी, यू विल गेट द नोट्स. मटेरियल एंड नॉन मटेरियल. मटेरियल एंड नॉन मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, सो पे अटेंशन हियर प्रॉपरली. मटेरियल सोशल फैक्ट्स का मतलब होता है जो कि हमारे विजिबल या फिजिकल या टैंजिबल टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स होते हैं. टैंजिबल फिजिकल स्ट्रक्चर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स, जो चीजें हम देख सकते हैं. ओके, जैसे कि हमारा लॉ हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल सोशल फैक्ट्स. ये सब आपके बाहर एग्जिस्ट करते हैं और आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करते हैं. यस, सो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं आप फॉलो करोगे ही ना. अगर आप नहीं फॉलो करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज के लिए. सो लॉज जो होते हैं हमारे मटीरियल सोशल फैक्ट्स होते हैं. नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनविजिबल होते हैं. यस, लाइक आई टोल्ड यू, जैसे आप उन्हें नहीं देख सकते हो,
बट आप उसे फील कर सकते हो और आपको उसे फॉलो भी करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. ओके. मैरिज नॉर्म्स जो हो गए हमारे. यस. रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, ये आपके दिमाग और बिहेवियर को कहीं ना कहीं शेप करते हैं. टेक द एग्जाम्पल हियर वेयर यू हैव टू टच द फीट ऑफ द एल्डर्स. ओके. आपको किसी ने फोर्स नहीं किया फिजिकली कि आपको जाके टच करना है फीट, बट आप करते हो बिकॉज सोसाइटी ने ही आपको सिखाया है. और अगर आप नहीं करोगे तो यू विल बी लुक्ड एट एज नॉट द गुड पर्सन. सो दिस इज नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स. सो ये याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Now, what are the rules to distinguish between what is normal and what is pathological? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से facts normal हैं, कौन से facts pathological हैं? Very important because exam में conceptual questions आते हैं. So you need to understand this because it is very tricky in nature also. So ये थोड़ा theoretical भी है, but अगर एक बार आपको समझ में आ गया, then you will be able to answer in-depth questions in examination also. Number one, a social fact is normal for a given society when it has its utility for the societal type. डरखाइम क्या कहते हैं? कोई भी सोशल फैक्ट नॉर्मल तब होगा जब वो उस सोसाइटी के लिए यूजफुल होगा, कहीं ना कहीं एक यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा. ओके. मतलब अगर कोई चीज सोसाइटी को फंक्शन करने में हेल्प कर दी है तो वो नॉर्मल कहलाएगी. सो रिमेंबर, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? समवेयर इट इज नॉर्मल इन नेचर. ओके. नेक्स्ट, डर्कहाइम illustrates द एग्जाम्पल ऑफ क्राइम. वो क्राइम के एग्जाम्पल से नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एक्सप्लेन करते हैं. नाउ व्हाट डज दिस मीन? डर्कहाइम ने कहीं ना कहीं इसे क्लासिक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था क्राइम. अब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? क्राइम जो होता है वो बहुत गलत होता है, इट इज अब नॉर्मल इन नेचर. बट डर्कहाइम बोलते हैं क्राइम इज एक्चुअली नॉर्मल. Why crime is actually normal? Durkheim argues that even though crime involves the deviation of individual behavior from the approved set of social behaviors, it cannot be considered abnormal. इसे समझना बहुत जरूरी है. क्राइम हर सोसाइटी में हमें देखने मिलता है, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो, विलेजेस हो, मॉडर्न सोसाइटीज हो, हर जगह हमें क्राइम देखने मिलता है. इट इज यूनिवर्सल. ओके. सो समवेयर, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सब जगह क्राइम एग्जिस्ट करता है. तो जो चीज यूनिवर्सल है वो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल कैसे हो सकती है? अगर वो हर जगह एक्सेप्टेड है तो वो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम अब नॉर्मल कैसे हो सकती है? सो अगर सोसाइटी में कोई डिविएशन ही ना होगा तो चेंज कैसे आएगा? इसलिए ही सेज दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, इट्स इंपॉर्टेंट दैट सर्टेन लेवल ऑफ क्राइम is performed. Hence he calls it normal in nature. Okay. So अगर सब लोग समझो blindly rules follow करने लग गए तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? रिफॉर्मेशन, चेंज कहाँ से आएगा? कुछ होगा ही नहीं. इसलिए डेविएंस लीड्स टू चेंज एंड इनडायरेक्टली क्राइम जो है सोसाइटी को इवॉल्व करने में हेल्प करता है. ओके. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. First, crime as a social fact exists in all type of societies like I told you. Second, अगर कोई deviation होगा ही नहीं तो there will be no change in human behavior, no modification of the existing social forms. So इसलिए डर्कहाइम कहते हैं crime is not always harmful, it is somewhere functional for the society because it also brings reformation, it also brings change in society. पैथोलॉजिकल कब होता है? ये बहुत आपको डिफरेंस समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट. जब वही चीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लग जाती है अकॉर्डिंग टू हिम और सोसाइटी को डैमेज करने लग जाती है. यस. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली पैथोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू हिम इज. यू कैन टेक द एग्जांपल हियर ऑफ अ प्रोटेस्ट. ओके. अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल फैक्ट कहलाएगा बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ रिफॉर्मेशन, चेंज एंड पॉजिटिविटी. हावेवर अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल होगा अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम because it is the same activity, protest, but with a different impact. It is destroying the peace of society. So this is very very important. So by now we have finished with what are the types of social facts. तो हम इसे 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? यूजफुल एंड यूनिवर्सल. पैथोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? इट इज हार्मफुल एंड एग्जेसिव. क्राइम के एग्जाम्पल से इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है. डिवियंस जो है कहीं ना कहीं चेंज लाता है, बट वो डिवियंस अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाता है.
I hope this is clear with you guys. So I've added this slide as well for you guys, that he said that crime is a normal social fact by Emile Durkheim. What was his view? That crime abnormal नहीं है, हर सोसाइटी में देखने मिलता है, एक फंक्शनल रोल प्ले करता है सोसाइटी में. कहीं ना कहीं अगर डिविएशन होगा ही नहीं तो सोशल चेंज क्या प्रोग्रेस ला रहा है वो हमें पता चलेगा ही कैसे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन. इफ देयर वाज नो क्राइम देयर वुड बी नो एवोल्यूशन ऑफ मॉरल बाउंड्रीज. For example, movements once considered deviant, like gender equality or civil rights, later became accepted as social norms. So कहीं ना कहीं जो चीजें पहले मानी जाती थी कि ये डिविएंट है, बट वही चीजों के लिए जब प्रोटेस्ट हुआ, ओके थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, तो वो चीजें हमारे सोसाइटी के लिए पॉजिटिव टर्न हुई. सो अ लिटिल बिट ऑफ क्राइम इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हिम. Let us answer this question and understand. Let's see how many of you all can answer this question. Which of the following would Durkheim classify as a non-material social fact? इनमें से इमाइल डर्कहाइम के हिसाब से नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या होगा? लीगल कोड्स, आर्किटेक्चर, कलेक्टिव कॉन्शाइंस, पॉपुलर डेंसिटी. स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है कलेक्टिव कॉन्शाइंस. व्हाई कलेक्टिव कॉन्शाइंस? आई टोल्ड यू, नॉन मटेरियल जो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. यू कैन नॉट सी देम बट यू हैव टू फॉलो देम. सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होता है वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट होगा, एंड हेंस इट इज अ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट. लीगल कोड्स हमारे मटेरियल हो जाएंगे, इवन आर्किटेक्चर मटेरियल. पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा वो भी मटेरियल हो जाएगा. Yes. So I hope this is clear with you guys by now. Social facts is clear. Now, if you have still not downloaded our application, Everything About Sociology, make sure you do so. Now, what is so different about this application? You will get all the updated notes for sociology for any competitive examinations. There are syllabus oriented courses, updated notes in English and Hindi. You will also get year wise PYQs, and not only that, there are daily quizzes uploaded by me, that is your Yashika ma'am. So make sure you download the application from the description box. Thank you very much, students. I will see you all in the next class. Bye bye. Take care.